एवरीवन। आज हम लोग फिर से ब्लू बुक एट द फीट ऑफ द मास्टर रिवाइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले कि डिजायरलेसनेस इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशन टू वॉक ऑन स्पिरिचुअल पाथ। तो आज पहले मैं इसको पढ़ूंगी डिजायरलेसनेस के बारे में, फिर हम इस पे बात करेंगे। तो पेज नंबर 31। There are many for whom the qualification of desirelessness is difficult one, for they feel that they are their desires, that if their distinctive desires, their liking and dislikings are taken away from them, there will be no self left. But these are only they who have not seen the Master. In the light of his holy presence, all desire dies, but the desire to be like him. Yet before you have the happiness of meeting him face to face, you may attain desirelessness if you will. Discrimination has already shown you that the things which most men desire, such as wealth and power, are not worth having. When this is really felt, not merely said, all desire for them ceases. Thus, for all is simple, it needs only that you should understand. But there are some who forsake the pursuit of earthly aims only in order to gain heaven or to attain personal liberation from rebirth. Into this error you must not fall. If you have forgotten self altogether, you cannot be thinking when that self should be set free. So what kind of heaven it shall have? Remember that all selfish desire binds, however high may be its object, and until you have got rid of it, you are not wholly free to devote yourself to the work of the Master. When all desires for self are gone, there may still be a desire to see the result of your work. If you help anybody, you want to see how much you have helped him. Perhaps even you want him to see it too and to be grateful, but there is still desire and also want of trust. When you pour out your strength to help, there must be a result, whether you can see it or not. If you know the law, you know this must be so. So you must do right for the sake of the right, not in the hope of reward. You must work for the sake of the work, not in the hope of seeing the result. You must give yourself to the service of the word because you love it and cannot help giving yourself to it. Have no desire for psychic powers. They will come when the master knows that it is the best for you to have them. To force them too soon often brings in its train much trouble. Often their possessor is misled by deceitful nature spirits or become conceited and thinks he cannot make a mistake, and in any case the time and strength that it takes to gain them might be spent in the work for others. They will come in the course of development. They must come, and if the master sees that it would be useful for you to have them sooner, he will tell you how to unfold them safely. Until then, you are better without them. You must guard too against certain small desires which are common in daily life. Never wish to shine or to appear clever. Have no desire to speak. It is well to speak little, better still to say nothing, unless you are quite sure that what you wish to say is true, kind, and helpful. Before speaking, think carefully whether what you are going to say has those three qualities. If it has not, do not say it. It is well to get used even now to thinking carefully before speaking. For when you reach initiation, you must watch every word, lest you should tell what
must not be told. Much common talk is unnecessary and foolish. When it is gossip, it is wicked. So be accustomed to listen rather than to talk. Do not offer opinions unless directly asked for them. One statement of the qualification gives them thus to know, to dare, to will, and to be silent. And the last of the four is the hardest of them all. Another common desire which must sternly repress is the wish to meddle in the other man's business. What another man does or says, believes is no affair of yours, and you must learn to let him absolutely alone. He has full right to free thought and speech and action, so long as he does not interfere with anyone else. You yourself claim the freedom to do what you think proper. You must allow the same freedom to him, and when he exercises it, you have no right to talk about him. If you think he is doing wrong, and you can contrive an opportunity of privately and very politely telling him why think so. So it is possible that you may convince him, but there are many cases in which even that would be an improper interference. On no account must you go and gossip to some third person about the matter, for that is an extremely wicked action. If you see a case of cruelty to a child or an animal, it is your duty to interfere. If you see anyone breaking the law of the country, you should inform the authorities. If you are placed in charge of another person in order to teach him, it may become your duty to gentle to tell him of his fault. Except in such cases, mind your own business and learn the virtue of silence. तो ये पूरा मैंने कंटेंट जो डिजायरलेसनेस का जो पूरा पैराग्राफ था वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब मेरे डिस्कशन का टॉपिक है डिजायर वर्सेस डिजायरलेसनेस। तो हम जब छोटे होते हैं, ठीक है, तो जब हम पैदा होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर समझ आती है तो हमारे अंदर पढ़ाई की डिजायर है, पढ़ने की इच्छा है, खेलने की इच्छा है, खाने की इच्छा है और अच्छा पहनने की इच्छा है। तो ये सब क्या है, डेली लाइफ की डिजायर होती हैं। हमें गाड़ी से जाना है, हमें एसी चाहिए, तो ये दीज आर ऑल डेली नीड्स। हमें अच्छे यूटेंसिल्स चाहिए, हमें एक अच्छा घर चाहिए, हमें एक अच्छा किचन चाहिए, हमें ब्रांडेड चीज़ें चाहिए और मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि मतलब हमारी डिज़ायर यूजली होती क्या है, हमारी जो डेली लाइफ की नीड्स है वही हमारी डिज़ायर होती हैं और ये छोटी छोटी डिज़ायर होती है। फिर एक हमारी बड़ी लाइफ की डिज़ायर होती है कि हम कुछ बनना चाहते हैं। अब आप क्या बनना चाहते हैं, तो जो भी आपका फील्ड होगा, जो भी आप पढ़ाई करते हैं आप उसमें आगे जाना चाहते हैं। तो बच्चा जब छोटा होता है उसे आइडिया नहीं होता, वो अपना ऐसी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन बच्चों के माँ बाप जो उनसे बातें करते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको लॉ में जाना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो लॉट ऑफ ब्रांचेस आप जा सकते हैं, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो बच्चे तो छोटे होते हैं, वो नासमझ होते हैं, वो अपना खेलते कूदते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे बड़े होते हैं, क्लास 8 आता, 9 आता, 9 में वो चीज़ें समझते हैं। फिर 9 के बाद वो 11 12 में आते हैं, जब उनको अपनी वो स्ट्रीम चेंज करते हैं, आर्ट्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, फिर वो कोचिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे टीचर से जब बातें करते हैं तो वो सारा माइंड सेटअप जो होता है उनका सब चेंज होता है, उनको भी पता लगता है कि उन्हें क्या करना है। अब जैसे मेरा ही था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने इंटर के बाद कोचिंग वगैरह शुरू हुई, मेडिकल की मैंने ली, मैंने काफ़ी ट्राई किया, मेरा आयुर्वेदिक में हुआ, होम्योपैथिक में हुआ और मेरा डेंटल में भी पेमेंट बेसिस पे हुआ था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। और क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं एलोपैथ में जाना चाहती थी और मुझे बहुत ही हार्ट सर्जन और मुझे ब्रेन सर्जन का मुझे बहुत मेरा डिज़ायर था कि मैं एक सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, एमएससी तक मैं ट्राई करती रही मेडिकल को, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। तो यूजुअली मेरे जो है मार्क्स कम हो जाते थे फिजिक्स वगैरह में, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हर इंसान का अपना होता है, लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एमटेक कर लिया। एमटेक में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, जब मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने सोचा कि आई विल कंटिन्यू दीज थिंग्स, तो मैंने सोचा मैं पीएचडी करूँगी।
तो मैंने एचबीटीआई से एमटेक किया, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे कोई अच्छा सा लैब चाहिए जहाँ पे खूब अच्छी फैसिलिटी हो, जहाँ फंड का प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब मैं एमटेक कर रही थी तो वहाँ मतलब फंड का बहुत प्रॉब्लम था। वहाँ पे लैब इतनी इक्विप नहीं थी, बहुत परेशानी हो रही थी प्रोजेक्ट करने में। तो जैसे कि मेरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वेस्ट ट्रीटमेंट पे मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं कानपुर में जो डंकन इंडस्ट्री है मैं वहाँ पे भी गई, मैंने पूरा इंडस्ट्री विजिट किया, मैं वहाँ से फर्टिलाइजर वेस्ट कलेक्ट करती थी। फिर मैं एचबीटीआई के लैब में करती थी, मैंने एक ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया था। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था और मेरा बहुत मन था कि मैं रिसर्च में खूब हायर एंड हायर हायर मैं जाऊंगी। तो ये सारी बातें होती थी, यही है, ये एक इंटरेस्ट होता है, ये डिज़ायर होती है। डिज़ायर कैसे क्रिएट होती है? तो डिज़ायर इज़ लाइफ। तो जब तक आपके अंदर डिज़ायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होती है ना, वो किसी भी हाल में या किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट इट विल बी फुलफिल। तो कहते हैं कि किसी जिसका जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सब कुछ सेट होने लग जाता है। तो कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स योर स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी इज ओनली मेंट फॉर द इमोशंस एंड द डिज़ायर। तो आपका एस्ट्रल बॉडी कितना स्ट्रांग है, आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है, तो ये डिपेंड करता है कि बचपन से आपके, अब जैसे सपोज दैट अब हम हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, हमने अपने मन में ऐसा सोचा कि मुझे आज ये चाहिए, और आपको पता लगा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से वो आपको मिल गया, बल्कि आपने वो किसी से शेयर भी नहीं किया कि मुझे वो चाहिए, लेकिन आपको वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अरेंज ऑल द थिंग्स फॉर यू बिकॉज यू आर रेडिएटिंग योर वाइब्रेशन टू द यूनिवर्स। तो आप अपने वाइब्रेशन को जो है यूनिवर्स में रेडिएट करते हैं और वो थिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जैसे मेरा बचपन से था, जैसे मैंने किसी से इवन कि मैं ये सोच लूँ कि आज मुझे ये खाना है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता था। मतलब कोई ले आया, फिर मैंने खा लिया, जबकि मैंने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन ऐसा होगा जैसे मुझे सपोज कुछ चाहिए, आ रहे हाँ मुझे लेना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो मिल जाता है, अरेंज हो जाता है। तो इस टाइप से सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी को ही कहते हैं। तो डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। यदि इंसान के अंदर डिज़ायर नहीं है तो वो कुछ कर्म ही नहीं करेगा। जहाँ पर इच्छा है वहीं पे कर्म है। इच्छा के बिना आप कर्म नहीं करेंगे। जबरदस्ती जो काम कराया जाता है ना, उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। जो काम इच्छा से किया जाता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसमें इंसान का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें इंसान व्यक्ति का विकास होता है। तो कोई भी काम आप इच्छा से करिए, आप नीरस होके आलस भाव से किसी भी काम को करेंगे तो वो काम आपका फुलफिल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आलस आलस का है कि आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको एक उसमें रुचि पैदा करनी है। बिना रुचि के मत करिए, रुचि पैदा करिए, तब आपको उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है काम करने का। तो किसी भी कार्य करने को सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हो सकता है आपका कई जगह सिलेक्शन हो जाए, आपको चूज करना पड़े कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है। आपकी जॉब शायद हो सकता है कि कई जगह लग जाए, कभी कभी किसी की जॉब ही नहीं लगती है, तो आपको चूज करना पड़े कि आपको कहाँ जाए। तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाए, आप जो भी कार्य करिए उसको एक्सेप्ट करिए, फिर आप स्टार्ट करिए उसको करना। तो वहाँ पर व्यक्ति का विकास होता है। आप देखिए 24 घंटे में जो है वो सारे सब दिन बराबर नहीं होते हैं। अब दिन में जो है कुछ घंटे अच्छे भी होते हैं, कुछ घंटे खराब भी होते हैं। कभी कभी इंसान का खुद का मूड इतना फ्लक्चुएट करता है कि कभी अच्छा हो रहा है, कभी अच्छा नहीं भी लग रहा होता है। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है। लेकिन एक बार जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जब एक बार हम अपने आप को समझने लग जाएं, तो वहाँ पर आप हर चीज को अपने आप को समझा कर, आप इसी को काउंसलिंग कहते हैं। तो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर से बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को समझाइए। आप जब तक अनुभव आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, और जब चीजें समझ में आ जाती हैं एक बार, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइफ जो होती है वो बहुत आराम से हो जाती है। तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैं यही कह रही थी कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके आपको अपना काम शुरू करना पड़ेगा। अब सफलता और असफलता की बात हम करते हैं, तो यदि जीवन में लगातार असफलता आती रहे तो और फिर इंसान को जो होता है दुख में चला जाता है। दुख में जाने के बाद क्या होता है कि वो
उसके अंदर एक इच्छा जो होती है वो कम होने लग जाती है। इसी को डिजायरलेसनेस कहते हैं। अब डिजायरलेसनेस में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग का सिर्फ डिजायर ये नहीं होता कि काम नहीं, कुछ लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, दिन भर पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, कोई कुछ काम नहीं करे। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स के बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ करते ही नहीं है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, कह रहे भाई कुछ करो, पढ़ो लिखो, कुछ बनना है, कमाना है, खाना है। तो इस तरह से, और कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, या बल्कि उनको बोलना पड़ता है भाई अब थोड़ा शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। तो ये इस तरह से भी मतलब लोग होते हैं। तो आपको लगातार यदि आपके जीवन में असफलता आती रहे, अब असफलता घर और बाहर दोनों हो जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। अब आपके पास कभी कभी सब कुछ होता है लेकिन तो भी कुछ अच्छा अच्छा नहीं लग रहा होता, लाइफ बिल्कुल मोनोटोनस सी हो जाती है, जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, सुबह उठे फिर वही वही जीवन ऐसे ही चल रहा है। तो कुछ भी नया नहीं है, वही 14 साल से सब सेम चल रहा है, 20 साल से सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो वहां पे भी जो होता है कि लाइफ एक डल सी हो जाती है। आप आज डिजायरलेसनेस को आप मेडिकल फील्ड में कह सकते हैं कि डिप्रेशन है, ठीक है। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं? इंसान उदास रहता है, अकेले बैठा रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, और उसकी ना खाने की इच्छा हो रही है। तो डिप्रेशन कई प्रकार के हैं। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। यदि इंसान नहा नहीं रहा है तो ये भी एक सिम्टम है। यदि इंसान अपनी हाइजीन का नहीं ध्यान रखना है, सबसे पहला कार्य तो है ये कि आप जहाँ बैठते उठते हैं उस स्थान को साफ रखिए। आजकल के आप बच्चों को देखिए कि कुछ बच्चे बहुत अपना रूम नीट एंड क्लीन रखते हैं, अपनी टेबल है, अपनी कबर्ड है, अपना बेड है, अपना सब कुछ नीट एंड क्लीन है। कुछ बच्चे जो होते हैं क्लीन नहीं रखते हैं। अब अब आप बच्चों को क्या है कि बचपन से ही छोटे छोटे काम देते जाइए, क्योंकि बच्चों की आदत जो है आप बचपन में ही लगवा सकते हैं। यदि आपने बचपन में आदत नहीं लगवाई तो आप सोचते बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर हम उनको कहेंगे कि वो काम करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें, बल्कि ये बहुत गलत है। आपको बचपन से छोटे छोटे काम बच्चों से करवाने चाहिए, जिससे उनके अंदर एक एंथुसियाज्म रहे किसी काम को करने का, और उनके अंदर एक आदत डेवलप हो जाए कि हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम शुरू होता है अपने रूम से। इंसान जहाँ सोता है, जहाँ बैठता है, जहाँ खाता पीता है, तो वो जगह जो है साफ होनी चाहिए। अब आजकल देखिए, आजकल के बच्चे कुछ कुछ बच्चे 2 दिन नहीं नहाते हैं। अब जो है वो सुबह भी नहीं नहा रहे, शाम में पड़े हुए लेटे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उदास हैं, इधर उधर घूम रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब बाल कटाने का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बच्चे बाल नहीं कटा रहे हैं, बच्चे बाल बड़े हो जा रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो जाएं बाल कटा लें जाके, या इंटरेस्ट नहीं है। लैक ऑफ इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है? इतना उनको कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब है। अब देख लीजिए यंगस्टर का, देख लीजिए आजकल तो सेव नहीं कर रहे हैं लोग, लोगों के पास ना टाइम नहीं है। और आजकल तो फैशन भी हो गया है कि आप अलग अलग काइंड ऑफ आप रखिए तो आपका थोड़ा सा आपका फेस भी चेंज हो जाता है। तो लोग इस तरह से भी, लोग इस तरह से भी कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो आपका बॉडी हाइजीन का ही और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों को बचपन से छोटे छोटे काम कराने चाहिए जिससे उसके अंदर ये आदत डेवलप हो जाए। आज तभी छोटी बात हाइजीन की है, कल यदि बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ सकती है, स्मोकिंग की आ सकती है, ड्रिंक करने की आ सकती है, मैनी मोर थिंग्स। अब जैसे अब गाना सुनना है, अब गाना सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक 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 पिच होता है, एक एक साउंड का लेवल होता है जहाँ पर सब कुछ सूथिंग लग रहा है, माइंड रिलैक्सिंग हो रहा था। लेकिन एक जब एक अपर लिमिट हो जाती है ना, तो वो जो होती है ना, बहुत दिमाग में जो होता है ना, बहुत ही टेंशन क्रिएट करता है, स्ट्रेस स्ट्रेस जैसा हो जाता है, बहुत ही जैसे कान में बहुत ही लाउड साउंड हो, तो वो बहुत इरिटेटिंग सा लगने लग जाता है। तो एक कभी कभी थोड़ा सा तेज भी अच्छा लगता है कि आपको म्यूजिक जो है तेज सुनना है। कभी कभी कुछ काम कर रहे हैं तो लगता है थोड़ा धीरे सुनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में लगता है कुछ चलता रहे। अब आप ओवरनाइट काम कर रहे हैं, अब आप बैठे हैं तो कुछ कुछ हल्का सा म्यूजिक भी चलता रहता है साथ में, तो काम जो है आदमी अच्छे से करता रहता है। तो ये सारी बातें हैं। तो डिजायर इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैनी थिंग्स। तो एक डिजायर है, गाना सुनने की डिजायर है, अच्छा दिखने की डिजायर है, अच्छा अच्छा पहनने की डिजायर है, अच्छा बनने की डिजायर है, अच्छा पैसा कमाने की डिजायर है। पैसा कमाने के बाद मुझे एक अच्छी कार चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, और मुझे घूमने जाना है, मुझे फॉरेन कंट्री घूमना है। इवन कि हम अपनी खुद की कंट्री में इतने सारे प्लेस होते हैं, वहीं हम नहीं अभी तक घूम पाए हैं। तो लेकिन लोगों को लगता है कि फॉरेन ट्रिप पे जाना है, बल्कि हमारी अपनी खुद की कंट्री में इतना सारा प्लेस होता है कि हम वहीं नहीं घूम पा रहे होते हैं। तो
बहुत सारी डिज़ायर का अंत नहीं, इच्छाओं का अंत नहीं है। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इंसान बहुत ही दुख में चला जाता, उदासीनता में चला जाता, जब वो बहुत उसको चोट पहुंचती है, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हो जाता है, तब उसका मन नहीं करता है। अब यहाँ पे कई स्टेजेस हैं। अब किसी का खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, अब लेकिन आप ये बताइए, आदमी एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा। बॉडी एक्टिविटीज है, आपको वो तो करनी ही पड़ेंगी। आप 2 घंटा लेट जाइए, लेकिन आपको अपनी बॉडी एक्टिविटी के लिए तो उठना ही पड़ेगा। आपको आप ऐसा तो नहीं कि आप 2 दिन तक 4 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको उठना ही पड़ेगा, आपको कुछ तो खाना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो यही जीना है, इसी को लाइफ कहते हैं, इसी को जीना कहते हैं। अब आप चाहें कि 24 घंटे नहीं आदमी सो सकता, आप लेट के देखिए, आपको इवन की बैक साइड में आपको बहुत सारा पेन होने लगेगा यदि आप 24 घंटे लेटे रहिए। आप लेट के देखिए 2 दिन लगातार, इवन की बहुत अनकंफर्ट होने लगेगा। तो सोना भी ज़रूरी है, उठना भी ज़रूरी है, बैठना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है। तो ये एक मशीन है, इस मशीन से सारे हमें काम लेने हैं। लेकिन एक स्टेज आती है कि जब इंसान को सब कुछ अचीव हो जाता है, अब लगता है अब कुछ भी नहीं बचा है, तो वहाँ पर डिजायरलेसनेस की स्टेट आती है। लेकिन हमें अभी भी एक, अभी जैसे हमने एट द फीट ऑफ द मास्टर पढ़ा कि हम कुछ भी काम करते तो हमारा मन होता देखें इसका रिजल्ट क्या है। अब हमने थीसिस सबमिट करी, हमने कोई भी पेपर सबमिट किया, अच्छा उसमें कितना उसका साइटेशन है, तो उसको कितने लोगों ने उसके व्यूज़ है। आप सिंपली देखिए, मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूँ तो मुझे भी बड़ी मतलब उदासीनता हो जाती है, अरे कोई भी व्यूज़ नहीं आए, कोई भी लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर वो लैक ऑफ इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि यदि एक भी व्यक्ति मेडिटेशन करने आता है तो आप उससे कराइए, यदि 2 व्यक्ति भी आ रहे हैं सीखने के लिए तो आप उन्हें सिखाइए। तो जो एंटाइटल्ड है वो वो ही करेगा, जो एंटाइटल्ड नहीं है वो नहीं करेगा। तो आज मैंने यूट्यूब वीडियोस डाले, तो जो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, तो वो एंटाइटल्ड हैं। जो नहीं देख रहे हैं, नहीं सुन रहे, वो एंटाइटल्ड है ही नहीं उस टीचिंग के लिए। तो हमें इसको इस तरह से समझना है। तो डिजायरलेसनेस एक बहुत ही हायर मतलब बहुत ही इनकारनेशन आप कह लीजिए कि ये जन्म जन्म तक हम चलते आए, तब आज हमारे अंदर डिजायरलेसनेस आई, वरना कुछ ना कुछ तो डिजायर रही जाती है। डिजायर है क्या एक्चुअली? एस्ट्रल बॉडी है। तो वही होता है कि कभी कभी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी डिजायर रहती, तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड मिल रहा, कई कई सालों तक लोग जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए रहते हैं। लेकिन इसी शरीर के साथ यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर लें, तो वो आप बताइए वो कितना अच्छा है कि आपने अपने सेंसेस के साथ में उसको अचीव किया। और जब वो खुशी, वो जो वो मिला, आपने अपने सेंसेस से उसको समझा। क्योंकि जब 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 तक ये शरीर है तब तक आप समझ पाएंगे, जब ये शरीर नहीं रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि डिज़ायर फुलफिल का क्या मतलब है और डिज़ायर फुलफिल ना होने का क्या मतलब। इसलिए कहते हैं कि मानव शरीर ईश्वर का एक वरदान है। हमें यदि ये मानव शरीर मिला है तो हमें इसके विकास के लिए सोचना चाहिए, अधिक से अधिक विकास के लिए सोचना चाहिए। तो अध्यात्म हमें सिखाता है, हमें सारी डिज़ायर हमारी जो होती हैं वो मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी फुलफिल होती है। और डिज़ायर को फुलफिल करना भी बहुत ज़रूरी है। और यही तो एक लाइफ फोर्स है, एक जीने की जो एक चाहत होती है, एक जीने की जो इच्छा, यही एक लाइफ फोर्स है, डिज़ायर। लेकिन हमें मास्टर सिखाते हैं, हमें भगवत गीता सिखाती है कि हमें कर्म करते रहना है, लेकिन कर्म के फल के पीछे भागना नहीं है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो फल तो अपने आप आएगा आपके पास, आप क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? यदि आपका कर्म नहीं अच्छा है तो नहीं आएगा। लेकिन आप परेशान मत होइए। तो ईश्वर आपको टेस्ट भी करता है कई प्रकार से, आपकी परीक्षाएं लेता है कई प्रकार से। तो आप इन बातों को समझिए और आप जो है उदासीन मत होइए। तो हर इंसान के अंदर एक जीने की चाहत है, हर इंसान फाइट करता है अपनी बीमारी से, अपनी, यदि उसके अंदर विल पावर और डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है तो वो ही विल कम बैक टू लाइफ। तो यही होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें लाइफ फोर्स इस यूनिवर्स से मिलता है, हमें एनर्जीज मिलती हैं। और यदि उस, लेकिन हमें उसके लिए कार्यरत रहना, हमें आलस नहीं करना। एक बार आपने आलस करना शुरू कर दिया, बॉडी बिल्कुल आपकी शिथिल हो जाएगी। तो आप
इस आप 4-5 दिन लेट के देखिए, आपकी आदत पड़ जाएगी। आप सो के देखिए, आप दिन भर पड़े रहेंगे, ऐसे सोते रहेंगे। तो आपको अपने मन से, अपने आप से बात करनी, नहीं, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दैट, यू करना ही होगा, करना ही होगा। आपका इच्छा नहीं है, मन नहीं है, ये आपको करना ही होगा। तो आजकल बहुत तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। लोग जो कहते हैं बच्चों को काउंसलर के पास ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, मम्मी पापा समझा रहे हैं, बच्चे समझ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वहीं से आप छोटे छोटे काम करिए, आपके अंदर काम करने की हैबिट्स डेवलप होनी चाहिए। इवन कि बच्चे आजकल अपनी जूते पॉलिश नहीं, आजकल तो क्या जूते ही नहीं इस तरह के आते हैं जहाँ पॉलिश करने की जरूरत पड़े। तो ये छोटे छोटे काम है कि बच्चों को अपने शूज को क्लीन करना आना चाहिए, अपने सॉक्स को क्लीन करना आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हर काम पेरेंट्स कर दे और मेड और सर्वेंट कर दे, अपना खुद खुद काम करना। यदि इंसान अपने छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहा है तो वो बाहर जाके क्या काम करेगा, बाहर क्या जॉब में क्या काम करेगा। तो यदि इंसान अपने खुद के जो भी कपड़े पहन रहा है वो यदि नीट एंड क्लीन नहीं है, तो आप कितना ड्राई क्लीनर को देंगे, आप कितना बाहर धोबी को देंगे। कितनी चीजें, आज तो मशीन है हमारे पास, वॉशिंग मशीन है। किसी वक्त में था कि कपड़े हम खुद से धुलते थे और कितना मुश्किल होता था, लेकिन उस वक्त भी हम कपड़े अच्छे से धुलते थे, प्रेस करके अच्छे से नीट एंड क्लीन पहनते थे। आज देखिए वॉशिंग मशीन, सिर्फ एक बटन लगाना है तो भी बच्चे कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं धुल पा रहे, मेड और सर्वेंट कपड़े फैला रही है। तो ये सारा सीन होता है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आज एक बटन पे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उस बटन पे भी हम कितने स्लो हो गए हैं, आप सोचिए। आज कपड़े का ढेर लगा रहता है लेकिन बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज मशीन कितनी जल्दी धुल देती है, उसमें कुछ नहीं करना, सर्फ ऐड करना है, वो करना है, लेकिन तो भी बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर आदत नहीं है ऐसी, ऐसा ऐसा बैकग्राउंड नहीं। क्योंकि हमें आदत होगी दूसरों से कराने की, खुद नहीं करने की। काम करिए, काम करने से एनर्जी आती है और फिजिकल वर्क बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कार्य करिए, छोटे छोटे काम करते रहिए। अब देखिए ना, जो लोग घर के काम नहीं करते हैं फिर वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अब ये रहता है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क रहता है कि आप देखिए घर के आप काम करिए, या आप बैठ के आप ट्रेडमिल चलाइए, या आप जिम जाइए, या आप डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स यूज करिए। तो वो एक डिफरेंट लुक आ रहा है। अब आप एक झाड़ू लेके झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड हो गया है, एक अब अपना स्टैंडर्ड हो गया। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप खुद से जब काम करते हैं ना तो वहाँ पे चीजें बहुत अच्छे से होती है। जब आप दूसरे से काम करवाते हैं तो वहाँ पे दूसरा अपनी मर्जी से काम कर रहा होता है, या आप अपनी मर्जी से उनसे काम करा लिए। आप अपनी मर्जी से उनसे काम कराएंगे तो वो काम ज्यादा दिन चल नहीं पाता है, या तो वो सामने वाला बहुत ओबीडियंट होते। यही यहीं पे वर्क, यहीं पे बात आ रही कि मास्टर। अब हु इज द मास्टर? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मास्टर को फॉलो करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, वो जैसा बताते हैं उनको करते हैं। यही स्पिरिचुअलिटी, यही है कि हम एक शिष्य हैं, हम अपने गुरु की बात सुन रहे हैं, हम अपने गुरु के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, एक बारीकी से हर बात पे ध्यान दे रहे हैं। हम बिल्कुल वो नहीं, इरिटेट नहीं हो रहे, हम बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। हम आज कुछ लोगों को क्या काम बताइए, ऐसे करो ऐसे करो, उतनी देर में इरिटेट हो जाते हैं, देखो मुझे मत बताओ, इस तरह से करें, मैं ऐसे ऐसे करके। ऐसे हर किसी इंसान को फ्रीडम देनी चाहिए काम करने की, लेकिन धीमे धीमे आदमी करते करते एक दूसरे से सीखते सीखते उसको आता है। कुछ लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं, पहले से ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है ऐसे ऐसे करना है, सारी चीजें होती हैं। तो यहीं पे वही होता है ना, मालिक और नौकर की बात आती है। तो एक ओबीडियंट सर्वेंट को सभी लाइक करते हैं, और जो है जो ओबीडियंट नहीं होते वहां पर फिर वही होता है। वही टीचर और स्टूडेंट में भी होता है, जब तक स्टूडेंट टीचर की बात सुनता है टीचर को भी अच्छा लग रहा होता है। लेकिन हम, मेरे ग्रैंड मास्टर ने हमेशा कहा है कि एवरी स्टूडेंट हैव देयर ओपिनियन। उनको मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अपनी सोच, अपने आप से सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो लास्ट में हमारा काम है बताना। तो हम सुनते रहेंगे, हम समझते रहेंगे, फिर लास्ट में हम करते अपने मन की ही हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो डिजायरलेसनेस एक सर्टेन एज के बाद आती है। आदमी बहुत 70 साल 80 साल हो गया, जीते जीते हो गया, अब इसकी फिजिकल बॉडी ऐसी हो गई, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा, बीमार हो गया, बिल्कुल थक गया, हार गया, अब ईश्वर मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक इनकारनेशन की बात नहीं है। अब कुछ आत्माएं ऐसी होती है जो कई कई इनकारनेशन जन्म लेती हैं। अब वो इस इनकारनेशन में आके लगता है बिल्कुल थक गए हैं, अब बिल्कुल मुझसे हो नहीं रहा है, अब मैं नहीं करना, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन तो भी पता नहीं क्यों मैं, मेरे अंदर एक लाइफ फोर्स नहीं रह गया, मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। तो दैट इज द स्टेज ऑफ द डिजायरलेसनेस। तो भगवान भगवान कृष्ण ने तो हमको बताया ही है कि हमें
कर्म करते रहना है, कर्म के फल के बारे में नहीं सोचना है। जैसे हम सेल्फलेस हो के काम करते हैं तो हम बंधन बॉन्डेज में नहीं आते, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम लिबरेट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बोलते जाइए, लेकिन ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला। आज मैं थोड़ी सी बात अपनी शेयर करूँगी। तो 2000 में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसे इवेंट्स लाइफ में हुए, तो मतलब दिक्कत हुई मुझे थोड़ी सी। लेकिन उसके बाद व्हेन आई डिसाइडेड नहीं मुझे करना है, करना है, करना है, तो आफ्टर एम टेक थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ मुझे। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ी दिन प्रॉब्लम में रही, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं भगवान मुझे करना है, मैं करके रहूँगी। और एक बार अंदर से आप एक डिटर्मिनेशन जो होता है ना, डिटर्मिनेशन यदि लाइफ में हो जाए तो आप कुछ भी कर सकते, किसी बीमारी को आप हरा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। फिर मैंने पीएचडी भी की, और मेरा जो है फिजिकली मैं ठीक नहीं थी, लेकिन तो भी मैं पीएचडी करती रही। उस वक्त लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ में थी कि उस वक्त थी, वो शायद कह सकते कि मैं अध्यात्म में जा चुकी थी, या स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मुझे हो चुके थे, 2000 में ही हो चुके थे मुझे। लेकिन मुझे उस वक्त मैं बुकिश थी, मुझे एमएससी एमटेक और ये सारा मुझे था, मुझे अध्यात्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मेरे परिवार में किसी को कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं चीज़ें को रिलेट नहीं कर पा रही थी। और जो भी मेरे साथ हो रहा था मेरे अंदर था, मैंने कुछ कुछ बातें अपनी मदर से भी शेयर की थी, उनको भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसे इवेंट्स थे, मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि 2000 में ही मतलब वो सारी बातें मुझे मतलब हो गई थी मेरी लाइफ में। लेकिन मुझे ही कुछ उसके बारे में ए टू कहते हैं ना उसका, मुझे बेसिक भी नहीं पता था। फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी पीएचडी करी, पीएचडी करने के बाद जो है मेरी शादी हुई। शादी के 1-2 साल बाद ही जो है मैं मेडिटेशन फील्ड में आ गई, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग ज्वाइन किया। प्राणिक हीलिंग में जब मैं आई, जब मैंने चीज़ें पढ़ी, फिर धीमे धीमे मुझे कुछ कुछ अनुभव, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा जो 2000 में हुआ मेरे साथ, वो ये सब था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं घर पे रही, घर पे भी मैं रहती थी, लेकिन अंदर से जैसे लग रहा था कि मतलब मैं अब नहीं बचूंगी, या अंदर से मुझे लग रहा है कि मैं बहुत थक सी गई थी। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी करने की, मेरे अंदर बहुत मतलब हो गया था। मेरे पास ऐसा नहीं था, ठीक ही ठाक था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, घर पे थे, बच्चे थे, ये था, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बट एक अंदर से कोई हैप्पीनेस नहीं थी। हैप्पीनेस थी घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बट वो एक फिजिकल वर्क मेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से बहुत काम करती आई हूँ, यदि मैं बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती। देन आई डिसाइडेड नहीं, मैं यदि घर पे हूँ, यदि बाहर का काम नहीं करूँ, तो मैं अब कुछ घर का काम करूँगी। तो मैं जानबूझ के कुछ ना कुछ काम करती हूँ, मैं घर के काम जरूर करती हूँ, फिजिकली मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप कुछ काम करते हो तो आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, और ब्रेन एक्टिव, कुछ एक मोटिव चाहिए, एक एक मकसद चाहिए, एक पर्पस ऑफ द लाइफ। यदि पर्पस नहीं है तो कुछ नहीं है। अब देखिए, एक बाहर जो काम करने वाला है, एक लेडी है, और एक घर में जो काम करने वाली, एक मेरी, अब जैसे सपोज आप मेरी मदर का एग्जांपल ले लें, अब वो बाहर तो वर्किंग है नहीं, वो अपना घर पे ही काम करती है, तो उनका लाइफ का पर्पस क्या है? बच्चों को खाना खिलाना, घर देखना। हाउसवाइफ का क्या पर्पस होता है? तो एक तो पर्पस होना ही चाहिए। इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका क्या पर्पस होता है? भैया वो अपने बच्चों को देखेगा, बच्चों को गाइडेंस देगा, पार्क में जाएगा, घूमेगा। तो लाइफ में पर्पस यदि नहीं है तो लाइफ गई आपके काम से। तो यू हैव टू क्रिएट एनी पर्पस इन द लाइफ। तो क्रिएशन ऑफ पर्पस इन द लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें होती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे भी अंदर से जैसे लगता था कि मैं बिल्कुल थक सी गई हूँ, और मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे बहुत अजीब सा होता था। लेकिन मेरे अंदर बचपन से एक लाइफ फोर्स मेरे अंदर बहुत था कि मुझे, मेरा मतलब मैं 4-5 घंटे बड़ी मुश्किल से मुझे लगेगा कि अब नहीं, कुछ नहीं करना है, लेकिन 5-6-7 घंटे बाद फिर से मुझे, अरे मुझे कुछ करना है, चलो उठो, मुझे करना है, करना है। तो 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, उसके बाद फिर मुझे बड़ी अनकंफर्ट होने लगता है, तो मुझे लगता है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो ये मतलब बहुत मेरे साथ रहता है। तो बीच में मुझे, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं पूजा वगैरह कर रही थी, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअली हो क्या रहा है मुझे अंदर। अब मुझे चीज़ें समझ में आने लगेगी एक्चुअली हो क्या रहा था मेरी लाइफ में, मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी एक्चुअली। वही होता है ना कि भगवान की कॉल आती है आपके पास, ईश्वरीय कॉल होती है। तो भगवान जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं।
तो वो सारी चीज़ें तो अध्यात्म में जब हम पढ़ाई करते चीज़ें पढ़ते हैं। अब मैं एक बार अरविंदो आश्रम गई थी, वहाँ पे मुझे पढ़ने की आदत बहुत, वहाँ पे मैगज़ीन मिली, मैंने वहाँ पे मैगज़ीन पढ़ी, जब चीज़ें मैं पढ़ रही थी मैं को रिलेट कर, अच्छा ये था, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा इसका मतलब ये था, ओ अच्छा ऐसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यही कहते हैं नॉलेज, पढ़ना, ज्ञान। जिसको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो आदमी अंधकार में जी रहा है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है, इसे समझ ही नहीं आ रही चीज़ें। इसी को नॉलेज कहते हैं। और फिर जब ईश्वर हमारे साथ होता है तो हमारी नॉलेज जो होती है विजडम में बदल जाती है, तब ईश्वर हमें दूसरे तरह के ज्ञान देता है। तो अभी ये फिजिकल वर्ड के रहते हैं, और फिर ये आपको एक एनर्जी वर्ड के आपको ज्ञान मिलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आज मैं इतना ही बात करूँगी। अभी मैं कमिंग डेज में एक नए टॉपिक पे आपसे बात करूँगी, तो उसमें मैं इस टॉपिक को फिर से डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो आज मैं फिर से आपको रिव्यू करना चाहती हूँ कि ये छोटी सी बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप बार बार पढ़िए। कभी कभी कुछ सेंटेंस होते हैं पढ़ रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा होता इसका क्या मतलब है, फिर से पढ़िए, फिर से समझिए, फिर से पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे आप, फिर आप भूल जाएंगे 1 महीना, फिर आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो आपको रिवाइज करना है। आप मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन कुछ कुछ भूल गए। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे कि वो आप नहीं भूल सकते, वो कहीं ना कहीं सीड, दैट इज कॉल्ड द सीड ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो रहते हैं। तो रिवीजन जरूरी है, कोई भी स्टूडेंट के लिए लाइफ में रिवीजन जरूरी। यदि आपने पढ़ाई की रिवीजन नहीं किया तो आप एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो वो आपको रिवाइज करना रहता है। इसको मैंने कई बार पढ़ा है लेकिन आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया नया लगता है। आप जैसे कि देखिए कि जो आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं वो बिल्कुल नया नया सा होता है, जब आप इंटर में आते हैं तो लगता है हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर आप जब बीएससी एमएससी में लगता है अरे ये तो बहुत ही आसान था, उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था, आज कितने अच्छे से क्लियर है। तो कोई भी कंसेप्ट जो है वो टाइम के साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बात करेंगे डिटेल में इन कमिंग डेज। और गुरु पूर्णिमा भी आने वाली है और मैं कोशिश करूँगी मैं कुछ अच्छी बातें और कुछ नया आपको बताऊँ। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।